Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, which is called as electrochemistry. ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ which deals with the study of how chemical energy can be converted into electrical energy। ਆਪਾਂ chemical reaction ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ electrical energy ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਕ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਪਲਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਕਾਪਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਵਾਈਲ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਸੋਲਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਲਟ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਕੁਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਐਕੁਅਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲਟ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਪਲਸ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲਸ Cu2 positive give rise to copper plus Zn2 positive।
आयनिक फॉर्म च लिखी है। देखो यार इतने देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इतने 0। क्या देखो जो कोई कंपाउंड अपनी प्योर स्टेट होंगे एलीमेंट तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0। कॉपर अपने अपने प्योर फॉर्म च नहीं है कंपाउंड है तो मैं पता कि है सल्फेट के -2 तो कॉपर से कितना होएगा +2 मीनस Zn+Cu2 पॉजिटिव बन क्या रहा है थोड़ा जल्दी में देख लेंगे। ZnSO4 मीनस -2 +2 कॉपर अपनी प्योर स्टेट जा गया था 0। रिएक्शन बेसिकली हो ही गई है कि भाई जो जिंक है ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते मतलब ए क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड बट जो कॉपर है क्या होया रिड्यूस क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेने एक्सेप्ट कर ले। तो ओवरऑल कि रिएक्शन है तुझे पढ़ा होगा रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब जिंक खत्म होता जाऊगा प्योर जिंक देखो प्योर जिंक तो खत्म होता जा रहा है क्या बनता जा रहा है जिंक के आयन्स। जो मैं रॉड में डिप करूँगा तो रॉड का वेट है क्योंकि जिंक डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाऊगा तो आप आफ्टर सम टाइम देखा कि रॉड का वेट है वेट ऑफ द रॉड डिक्रीजेस। देखो पहले ऑब्जर्वेशन हमने किया होगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगी जो जिंक है प्योर जिंक आयंस कन्वर्ट हो रहा है मतलब सोल्यूशन अंदर डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा मीन जिंक जो रॉड है वेट क्या करेगा डिक्रीज होएगा। इस रिएक्शन की पहली ऑब्जर्वेशन की आएगी वेट ऑफ द जिंक रॉड विल डिक्रीजेस। सैकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि इतने क्या है प्योर कॉपर बनना स्टार्ट हो गया तो इतने एक रैड जे कलर का सबसटांस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप स्कूल जावांगे तो मैं करके दिखा दूँगा एक्टिविटी आप श्योरली करा सैल बना के देखना कि बनता कि काम करता है। तो इतने क्या रैड कलर का सबसटांस की है नीचे बैठना शुरू हो जाता है एंड दैट रेड कलर सबसटांस इज कॉपर। तो सैकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आएगी इतने लिख देना मैं कॉपर स्टार्ट्स टू फॉर्म। कॉपर स्टार्ट्स टू फॉर्म देखो इतने बेसिकली देखा जाए तो इलैक्ट्रॉन का हेर बदल होया है। जिंक ने 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए देखो कि वो ऑक्सीडाइज होया हम देखो लूज करने किसी भी चीज़ इलैक्ट्रॉन का लूज करना था कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होंगी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर एक मोल की गल करिए। सिमिलरली कॉपर ने किया 2 इलैक्ट्रॉन असैप्ट किया तो श्योरली इतने असैप्ट करने तो बाद मतलब कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हुई होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होपफुली क्लियर हो गया होगा 2 तरह की एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है ना एक आयनाइजेशन करके सेकंड की इन्वॉल्व हो रही है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन आई चलो देखा गया चलो दोबारा बना लूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या जिंक रॉड में टिप किया गया। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई कि टेंपरेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस ये टेंपरेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करके टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर कह सकते हैं आप टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। हम देखो फिगर आउट करना कि यार टेंपरेचर क्यों इंक्रीज हुआ टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। देखो बहुत सिंपल है अगर आप एक बेसिक फंडा अपना जा रहा है एक्सोथर्मिक मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बाहर आ गई। एक्सोथर्मिक का फंडा क्या होता है कि जो भी कदे न्यू बॉन्ड बनते हैं न्यू बॉन्ड्स क्योंकि न्यू बॉन्ड्स हमेशा क्या होंगे ने मोर स्टेबल न्यू बॉन्ड्स क्या होंगे मोर स्टेबल तो एनर्जी उत्थे पक्का क्या करते हैं रिलीज कर देती है। अच्छा मैं अगर रिएक्शन दोबारा देखा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू ZnSO4 प्लस कॉपर इतने न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है डैट्स पर इतने एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन श्योरली की अपनी एक्सोथर्मिक इन नेचर आप इदा कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लैस है कि इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नालों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक नाल रिलेटेड सी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किहदे नाल रिलेटेड सी कॉपर नाल कौन डोमिनेट कर रही है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डैट्स वाई एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा अगर आप पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड होता तो कोई जरूरत नहीं आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर लो कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई है। हम देखो एनर्जी तो रिलीज हो गई बेसिकली मैं करना क्या सीगा
मैं चाहता ਸੀਗਾ कि मैं किसी का तरीका लभा कि मैं कैमिकल एनर्जी ਨੂੰ कन्वर्ट कर सकां इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਵਿੱਚ। कैसे होया ये? मेरे ख्याल जैसे उल्टा काम हो गया, कैमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है उल्टा हीट एनर्जी ਵਿੱਚ। इलैक्ट्रिकल च नहीं कन्वर्ट हो पाई। हाँ अलग अलग आप हीट एनर्जी तो बना सकते इलैक्ट्रिकल एनर्जी, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम कह सकते आप, नहीं कर सकते, मतलब सैट नहीं आना है। तो ये इस सैटअप की लिमिटेशन है कि अगर आप सिंपल इस चीज़ में देखिए कि यार रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इलैक्ट्रॉन का फेर बदल हो रहा, बट इत्थे कैमिकल एनर्जी डायरैक्टली इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ये लिमिटेशन है इस मैथड की, तो हम लिख सकते हैं इत्थे। एंड इस रिएक्शन में बोला जाता डायरैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਕਾਂਟ डायरेक्टली कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। ये लिमिटेशन सी। दैन अगला पॉइंट देखो, दैन अबाउट नियरली 700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ एलेक्जेंडर वोल्टन ने एक आइडिया लगाया। देखो वोल्ट मतलब इलैक्ट्रिसिटी सारे नाल पहला सैल इलैक्ट्रिक वोल्टन ही प्रिपेयर किया सीगा। तो कहने भी अपना रिडॉक्स रिएक्शन अगर डायरैक्ट वे ना अपना काम नहीं बन रहा कि केमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रही, तो अपन इनडायरैक्ट वे ना करते हैं। तो ये आइडिया का लगाया, बहुत सिंपल आइडिया सीगा। वो कहता इत्थे दो रिएक्शन हो रही ने, एक बंदे की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और दूसरे बंदे की क्या हो रही है रिडक्शन। जिंक की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक क्या कर रहा इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। सानू हमें किवें पता लग गया कि जिंक इलैक्ट्रॉन लूज करूगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। कॉपर एक्सेप्ट कर सकता, लूज नहीं कर सकता जिंक में। ये भी गल ध्यान रखियो कि कौन लूज करूगा और कौन क्या करूगा गेन करूगा। हाँ दोनों रिएक्शन अपना इको कंटेनर करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी उसी कंटेनर च हो रही है, रिडक्शन भी उसी कंटेनर च हो रही है। तो उन्हें अलग अलग करके देखा जाए कि एक कंटेनर च ऑक्सीडेशन कर लो, एक कंटेनर च क्या कर लो रिडक्शन। वो देखो यार इनडायरेक्ट वे है। तो उन्हें सजेशन क्या दिता कि जस्ट टू बोथ ऑक्सीडेशन and reductions in different containers, different containers करके देखो। and that container are called as half cells। उन्होंने कंटेनर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ हाफ सेल। जिथे ऑक्सीडेशन हो रही होगी उन्होंने ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जिथे रिडक्शन हो रही उन्होंने की कहांगे आप रिडक्शन हाफ सेल। ऊपर इतना क्लियर हो गया होगा क्या चल रहा है। चलो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं कि कितना सेकेंड का फर्स्ट उन्होंने सैल बनाया डैनियल ने एंड वोल्ट ने। देखो उन्होंने किया सेम रिएक्शन की जिंक और कॉपर की। वो कहना एक कंटेनर जिंक सल्फेट लवो, जिंक सल्फेट में ओदी ही रॉड के कॉन्टैक्ट च रखो, मीनस जिंक रॉड में ओदी ही सोल्यूशन डिप किया गया। इतने कहता है कंटेनर रखो कॉपर सल्फेट, तो उन्होंने ओदी ही रॉड के क्या रखा गया कॉन्टैक्ट रखा गया कॉपर रॉड। एंड दैन दोनों ने जोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ वायर क्यों? ताकि इलैक्ट्रॉन क्या कर सकन ट्रांसफर कर सकन ग्रेविमेटर टू शो द प्रेजेंस ऑफ करंट और नॉट। करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम देखो तो बेसिकली होगा कि पहले आप इस चीज़ को समझते हैं
फिर आप जिंक नूं जिंक सल्फेट के कॉन्टैक्ट च रखांगे तो क्या होगा, समझना जी गल। देखो जिंक सल्फेट ऐदा टुट सकता है, Zn 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। और जो जिंक रॉड है, क्योंकि जिंक जो आपस में कनैक्ट हो गए, देखो जो आप इन्होंने आपस में कनैक्ट कर सकते एक सिस्टम बन गया, मतलब जिंक ते कॉपर सल्फेट आपस में कॉन्टैक्ट है, तो कॉपर डिमांड करूँगा जिंक तो कि इलैक्ट्रॉन दो, क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव दैन कॉपर। तो आ प्रोसैस होएगी उत्थे, मीनस जिंक रॉड क्या होएगी, टुटना स्टार्ट होगी, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स मिलने स्टार्ट हो जाने। इलैक्ट्रॉन कुछ इतने होने, सपोज 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 इलैक्ट्रॉन्स, इतने क्या होर क्या बन जाने, Zn 2 पॉजिटिव आयन, Zn 2 पॉजिटिव आयन्स, Zn 2 पॉजिटिव आयन। देखो बाहर ही साढ़ा प्लस हो गया, अंदर ही साढ़ा क्या हो गया माइनस। याद रखियो, थोड़ा आप अगे भी करेंगे अगले लैक्चर के, जिथे भी प्लस से माइनस सैपरेट हो जाता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वोल्टेज, उत्थे एक वोल्टेज फॉर्म होती है, आपको पोटेंशियल भी कहने, और बाद पढ़ांगे इस वोल्टेज को कहने इलैक्ट्रॉन पोटेंशियल, डिटेल च पढ़ांगे अगले लैक्चर पढ़ांगे। जिवें तुसीं एवरीडे सैल देखा होगा, एक साइड का लिखा होंगे पॉजिटिव, एक लिखा होंगे नैगेटिव, दोनों च क्या होंगे थोड़ा जा डिफरेंस होंगे, डिफरेंस होंगे, तो आपको वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट 9 वोल्ट जिन्हें का मर्जी होंगे, मतलब प्लस। तो श्योरली इतने भी क्या बन चुका होगा, एक पोटेंशियल, डेट पोटेंशियल को इलैक्ट्रो पोटेंशियल बाद करांगे। नैक्सट चीज़ देखो, हम देखो इलैक्ट्रॉन तो बन गए थे, बने क्यों, क्योंकि कॉपर की कर रहा है डिमांड कर रहा है, कॉपर सल्फेट सल्फेट डिमांड कर रहा है जिंक तो कि भाई कॉपर इलैक्ट्रॉन लूज करो। हम देखो इत्थे इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बढ़ती जानी है, होप इसमें क्लीयर हो रहा होगा, इत्थे इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बढ़ती जानी है, इत्थे इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन की घट है, तो मूवमेंट हमेशा हाई टू लो होती है, इलैक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट करना इधर, तो इधर क्या है इलैक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट होने। देखो जिदा ही इलैक्ट्रॉन आएंगे, समझने वाली गल, कॉपर सल्फेट का क्या है नॉर्मल है, ये 2 पार्ट ने, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। जिदा ही इलैक्ट्रॉन अप्रोच करेगा बाय इंडक्शन कह लो या कंडक्शन कह लो, कि इलैक्ट्रॉन क्या करेगा, इनू अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा अपनी तरफ, तो इतों जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन क्या होएगी इत्थे कि कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन्स, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो आयन 2 इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कीज कन्वर्ट होएंगे कॉपर। देखो जिंक 2 इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलैक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट। होपफुली इतना क्लीयर हो गया होगा। देखो एक्सेप्टर लूज करने के अपने फायदा हो गया, इलैक्ट्रॉन रन किए मतलब मूव किए, तो अपने पढ़िया हुआ आप 10th क्लास जो भी इलैक्ट्रॉन मूव करते थे फॉर्मेशन ऑफ करंट, दिमाग लग के ला लिया कि इलैक्ट्रॉन मूव करवा दो, एक ने गेन करने एक ने लूज करना, दोनों आपस कनैक्ट किया, इलैक्ट्रॉन्स क्या करके स्टार्ट करके मूव करना, जो मूव करना स्टार्ट किया ऑब्वियसली गल है कि क्या बनूगा करंट, डेट इज द आइडिया। एक चीज़ और देखो, देखो जो इलैक्ट्रॉन आएंगे एक्सेप्ट हो जाने, कॉपर बनना स्टार्ट हो जाना, मीन कॉपर रॉड का जो वेट है बढ़ना स्टार्ट हो जाना, तो अंदर की आ सल्फेट आयन्स जो कि इतने बने थे, देखो जो बॉन्ड टुटा तो सल्फेट आयन निकल गया बाहर, इतने की है सल्फेट आयन ने इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाना, SO4 2 नेगेटिव घेरा पारना मैं कहता एक तरीके ना। तो अगर हम नैगेटिव है सारे, तो रॉड के उपर इंडक्शन करके किहड़ा चार्ज आना है पॉजिटिव। होपफुली क्लीयर हो गया उसमें कि भैया सल्फेट सारे नैगेटिव है, रॉड पई है, रॉड से किहड़ा चार्ज आना पॉजिटिव। तो अगेन ध्यान दवो प्लस और माइनस अगेन सैपरेट हो गए, बाहर माइनस अंदर प्लस, अगेन इतने क्या बन जाना एक छोटी जी वोल्टेज, एंड दैट इज कॉल्ड द अगेन इलैक्ट्रो पोटेंशियल। तो कॉपर का होएगा जो इधर बने थे इलैक्ट्रो पोटेंशियल, जो वोल्टेज बने थे वो किहदा सीगा जिंक का। इलेक्ट्रॉन में स्टडी करा, होपफुली आ चीज़ क्लीयर हो गई होगी भी इतने इंडक्शन करके पॉजिटिव चार्ज बन गए। हुण देखो सैल ने काम करना स्टार्ट करता क्योंकि इलैक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट हो गए, बट जो थोड़ी देर बाद देखा गया जो सैल सीगा
उन्हें वर्क करना स्टॉप करता, मतलब वोल्टेज जीरो हो गई। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करा सैल का वोल्टेज वर्सस टाइम का, देखो इतने दो तरह के वोल्टेज ने, एक तो कॉपर की है जोड़ा कि रिड्यूस हो रहा, एक कि है जिंक की जोड़ा कि ऑक्सीडाइज हो रहा। एक पास अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी, दूसरे पास पक्का क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि उल्टा उल्टा प्रोसैस। अगर एक का साइन पॉजिटिव लूँगा, दूसरे साइन क्या लेना पड़ेगा मैंने नेगेटिव। तो बेसिकली ਇਹਦਾ वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आता है, कुछ ऐसा आता है। हेलो, एक चीज़ की इंक्रीज कर रही है, दूसरे की क्या कर रही है, डिक्रीज। आह पॉइंट किहड़ा आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद होगा केमिस्ट्री से गल पहले की थी +1 तुसीं पढ़िया होगा, इक्विलिब्रियम जिथे इक्विलिब्रियम बन जाता रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। मीनस इस पॉइंट से क्या होएगा, थोड़े सैल ने वर्क करना स्टॉप कर देना। तो अपन पेपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता कि वाई इलेक्ट्रोकैमिकल सैल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। आप भी देखा कि एवरेज सैल प्रमोट पाने का एक साल मगर वो बंद कर देंगे, तो उत्थे आई प्रोसैस स्टार्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। जो आप धुप्पे रखते हैं तो कहने कि सैल थोड़ा चल पाता, एक्चुअल धुप्पे रखना क्या होता है, टैंपरेचर पता नहीं कारण की आ, ये इक्विलिब्रियम थोड़ा जहा ब्रेक हो जाता है। तुसीं पढ़िया होगा ली-चैटली प्रिंसीपल कि इक्विलिब्रियम के उपर टैंपरेचर का कितना इफैक्ट पैंदा, तो थोड़े समय लिए की रिएक्शन दोबारा फिर करना स्टार्ट कर देंगे। डैट्स पे थोड़ा टाइम चलता, उस तो बाद दोबारा की बंद हो जाता है। होपफुली क्लीयर हो गया होगा। अगर आप क्लीयर है, चलो इत्थे चलो तो गल अलग है कि थोड़े टाइम बाद वर्क करना बंद करेगा। एक और प्रॉब्लम आती है इतने कि भाई इतने जिंक सल्फेट का Zn2 पॉजिटिव आयन बनने स्टार्ट हो गए, इतों इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहे हैं। हम सारे पता है कि बेसिक क्या होता है कि प्लस हमेशा माइनस में की करता होता है, अट्रैक्ट करता होता है। तो Zn2 पॉजिटिव आयन ने क्या करना है, देखो तो Zn2 पॉजिटिव आयन ने क्या करना है, इन्होंने नैगेटिव में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। मतलब इन्होंने बाहर नहीं जान देना है, मतलब मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी इधर। सिमिलर केस कुछ इत्थे है, अगर मैं ध्यान ना देखा इत्थे जो सल्फेट आयन बने हुए हैं, इन्हों पर किहड़ा चार्ज है जी, नैगेटिव। इधरों इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन्होंने भी किहड़ा चार्ज है, नैगेटिव। माइनस माइनस तो आपस क्या कर देंगे, रिपेल। तो इन सल्फेट आयन ने की करना, हम इन्होंने इलैक्ट्रॉन को अंदर नहीं जान देना है, इधरों बाहर नहीं जान दे रहे, इधरों अंदर नहीं जान दे रहे, तो इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अगर इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट ब्लॉक हुई तो सैल ने की करना है, वर्क करना स्टॉप। इतने लिख देना मैं थोड़ा पॉइंट कि इन जिंक कंटेनर, जिंक के कंटेनर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस, Zn2 पॉजिटिव आयंस स्टार्ट्स collecting. They did not allow the movement of electrons. Similarly in copper container क्या होएगा उत्थे, कॉपर कंटेनर च क्या हो रहा होगा, सल्फेट आयन बनने स्टार्ट हो गई। They did not allow the movement. They did not also allow the movement. तो मैंने किया मूवमेंट को अलाउ नहीं करना। देखो वोल्टेज और इक्विलिब्रियम करके तो सैल ने बाद बंद होना सीगा, इस प्रॉब्लम करके सैल ने थोड़ा टाइम में चलना है एंड बंद। देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी टाइम वर्क करने तो बाद आती है, पर आ वाली प्रॉब्लम जस्ट आफ्टर फ्यू सैकेंड आए हैं कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने एंड सल्फेट अगर इकट्ठे होने इन्होंने अलाउ ही नहीं करना। तो आपको इसका सोल्यूशन करना पैना सीगा। इसका सोल्यूशन क्या दसिया गया, बहुत सिंपल है कि भाई जिंक 2 पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हों खत्म कर दो, जब सल्फेट आयन इकट्ठे हो रहे हैं इन्होंने खत्म कर दो। तो पॉजिटिव को खत्म कर लिए अपन की चाहिए होंगे, नैगेटिव।
तो अपन किसी तरीके ना इधर नैगेटिव आयन भेजने पैने थे, इधर किहड़े भेजने पैने थे पॉजिटिव। तो इस चीज़ को अचीव किया गया विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज पहले समझो होंगी की आ। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल बुक च कहते हैं कि ये यू शेप्ड ट्यूब है, इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब। ये क्या होता है, एक पेस्ट बनाया जाता है अगर अगर एंड जो भी तुम इलैक्ट्रोलाइट पाना चाहते हो, इलैक्ट्रोलाइट मतलब जो कि प्लस से माइनस टुट जाए, मतलब KCl पा रहे हैं, अगर अगर प्लस KCl। देखो एक्चुअल च इदा की नहीं होंगी हैगी, आप मैं लैब से दिखाऊंगा सॉल्ट ब्रिज अपने को पई है कि एक्चुअल च इदा की नहीं होंगी हैगी, तो वर्किंग दिखाऊंगा पूरी ये। एक्चुअल च एक तरीके मिट्टी के भांडे नहीं होंगे हैगे, उदा ही होंगे जिस तरह मिट्टी के भांडे होंगे, दिखाऊंगा तुमको। इतने कहने भी सॉल्ट ब्रिज लगा दो, तो सपोज करो मैं इतने सॉल्ट ब्रिज लगा रहा, लो सॉल्ट ब्रिज लगाती। ये की है हुण अगर अगर प्लस KCl। हुण देखो इधरली साइड पॉजिटिव बनया हुआ, इधरली साइड नैगेटिव, ये कॉन्टैक्ट च आ गई। तो आ पॉजिटिव क्या करूँगा, जो KCl दे विच, देखो KCl विच K पॉजिटिव तो Cl नैगेटिव है, ये पॉजिटिव की करूँगा Cl नैगेटिव अपनी तरफ पुल करूँगा, आ पॉजिटिव कौन पुल करूँगा सल्फेट। तो इंद्रा बॉन्ड की करना ब्रेक होना स्टार्ट हो जाना, तो क्लोरीन किधर भजूगा इधर, एंड पोटाशियम किधर भजूगा इधर। करनगे क्या जाके इन्हें की करना जाके इतना जिंक क्लोराइड फॉर्म कर लेना है, एंड इन्हें की करना जाके पोटाशियम सल्फेट फॉर्म कर लेना। अपन फायदा क्या होएगा, जो एक्सट्रा जो 2 पॉजिटिव आयन बने थे वो क्या हो गए न्यूट्रलाइज। जो इतों खत्म हो गए तो इलैक्ट्रॉन फ्री ने मूव करने लिए, जिदा ही बढ़ने सोल्यूशन उदा क्लोरीन आऊगा खत्म कर दूगा, जिदा ही बढ़ने क्लोरीन आऊगा खत्म कर दूगा, सेम चीज़ इधर। तो इलैक्ट्रॉन का फ्री टू मूव अपन सैल की है दोबारा फिर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अपन पेपर पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तेरा पहला फंक्शन क्या होएगा, इट न्यूट्रलाइज मतलब खत्म करना, न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस। कौन करता है, बाय क्लोरीन आयन Cl नेगेटिव आयन, बाय Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस एंड एक्स्ट्रा सल्फेट आयंस। कौन करता है, पोटाशियम आयन K पॉजिटिव आयंस। अगर मैं थोड़ा होर टैक्नीकल वे लिखना हो कि इसका फंक्शन की है, मैं होर टैक्नीकल वे लिख सकता। अगर तुम वह पॉइंट नहीं विचार होता है तेरा फंक्शन मेन की है, पहला वही पॉइंट वही द्वारा लिख रहा है कि इट मेनटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेनटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सैल दे विच न्यूट्रलिटी को मेनटेन करती है। इसका पहला काम ये है जी। दूसरा काम मैं लिख दूँ आप समझ लाँगे, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट कर दिया। इधर उधर जा तो सॉल्ट ब्रिज आन करने कंप्लीट हुई है। वन तो आपस जुड़े नहीं हुए थे, सोल्यूशन तो आपस जुड़े नहीं हुए थे। एक है कि आउटर सर्किट, वो केड़ी है जी आ बड़ी, जिहदे थ्रू की ने इलैक्ट्रॉन मूव करे ने। तो आउटर सर्किट केड़ी है इत्थे, थ्रू विच इलैक्ट्रॉन्स आर मूविंग। दो तरह सर्किट ने थ्रू विच
इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि जिस दे थ्रू क्या ने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अच्छा इतने एक होर ऑब्जरवेशन है, बड़ी अच्छी ऑब्जरवेशन आएगी। ऑब्जरवेशन की है कि जिदा जिदा ही काम करूगा सैल काम करता जाऊगा तो जिंक रॉड का वेट घटता जाऊगा, जिंक रॉड वेट डिक्रीजेस, तो कॉपर रॉड का क्या करता जाऊगा, हाँ जी कॉपर रॉड क्या करूगा इंक्रीजेस, कॉपर रॉड का वेट क्या करूगा इंक्रीजेस। नैक्सट पॉइंट देखो आपको तो पूछा जाता कि भाई इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के इलैक्ट्रॉन किधरों किधरों जाते हैं। इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर आप देखिए मैं लिख देना पहला, इलैक्ट्रॉन किधरों किधरों जाते हैं, जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर देख लो इधर, इलैक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जाएंगे। बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर तुम याद होगा कि इलैक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ऑपोजिट कह लेंगे आप डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कॉपर टू जिंक, करंट किधर जाएगा कॉपर टू जिंक। अगर करंट कॉपर टू जिंक जा रहा है समझो गल अपन पता कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव जाता होगा, अगर तुम पता होगा 10th क्लास करंट हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव जाता होगा। अगर बैटरी बनाई हुई है मैं इदा देखो, अगर कोई सर्किट लगाई हुई है बैटरी पॉजिटिव नैगेटिव इदा लगाया है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नैगेटिव। फिर इसका मतलब अगर करंट कॉपर तो जिंक जा रहा, सॉरी कॉपर रॉड लिखा हुआ, तो कॉपर से किहड़ा चार्ज होएगा कॉपर रॉड से पॉजिटिव, जिंक रॉड से किहड़ा होएगा जी नैगेटिव। पोलैरिटी चार रखे बहुत हो जाना मतलब उलझावा पैंदा कि ये पॉजिटिव कि नैगेटिव, कॉपर टू जिंक करंट जा रहा तो सिंपल तरीका है कि कॉपर से पॉजिटिव जिंक से नैगेटिव। एंड पॉजिटिव मतलब कैथोड, ये भी याद करना बहुत सौखा। पॉजिटिव मतलब क्या होता कैटायन, कैटायन मीन्स कैथोड, तो जिंक कॉपर एक्ट कर रहा कैथोड, तो जिंक एक्ट कर रहा फिर श्योरली एनोड, एनोड मीन्स अनायन। होपफुली क्लीयर हो गया होगा। मैं एक पॉइंट होर लिख देना भी कि सैल दे विच जिंक कौन एक्ट करूगा एदा एनोड, कॉपर एक्ट करूगा एदा कैथोड। अगर कोई होर सैल बनाया गया एनोड से पक्का क्या होएगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक से क्या हो रही थी ऑक्सीडेशन, कैथोड से पक्का क्या होएगी रिडक्शन। तो करंट हमेशा कितों कितने जाएगा, पहले इलैक्ट्रॉन देखो कितने जाएगी एनोड टू कैथोड जाएंगे इलैक्ट्रॉन्स, करंट किमें जाएगा कैथोड टू एनोड। ये आपको MCQ में पूछा जाता है कि व्हाट द डायरेक्शन ऑफ करंट दिस। होगा इसमें इन्ना पार्ट क्लीयर हो गया होगा, सौखा सीगा कोई बड़ी गल नहीं है इन्हें तो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की वर्किंग सी थोड़ी जी। एंड सॉल्व करके दो फंक्शन, फंक्शन तो होर भी ने वो अलग लैक्चर डिस्कस करांगे। इतने एक छोटा जहा पॉइंट मैं दसना चाहना, सपोज करो सैल प्लीज नोट कर लो, सिमिलरली जिंक सल्फेट आ गई है तो कॉपर सल्फेट, आ गई है जिंक रॉड, आ गई है कॉपर रॉड, मैं आप कनेक्ट किया है थोड़े वोल्टेज। सपोज करो हमारा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आपको सपोज 4 वोल्ट दे रहा, किन्ने वोल्ट का करंट बना रहा है 4 वोल्ट का, मैं कैलकुलेशन कर ली सारी। सपोज करो मैं इस सैल बाहरों किसी चीज़ ना कनैक्ट कर देवां जिहदी वोल्टेज की आ मोर दैन 4, बाहरों किसी बैटरी ने कनैक्ट करो जिहदी वोल्टेज कितनी है मोर दैन 4 मतलब 5 वोल्ट है, फिर क्या होगा। मतलब अपन क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन्स if we apply potential मतलब voltage, potential more than the potential of the cell, जिन्ना सेल क्रिएट कर रहे हैं अपना वो ज़्यादा लगा दिया potential of the cell।
आंसर बहुत सिंपल। नॉर्मल सैल दे विच इलैक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक जा रहे हैं, नॉर्मल सैल दे विच की आ इलैक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जा रहे हैं, जिंक टू कॉपर। तो करंट किवें जा रहा, कॉपर टू जिंक, मैं नॉर्मल की गल कर रहा। एंड एनोड कौन है, जिंक। कैथोड कौन है, कॉपर। ये नॉर्मल सैल दी। हुण जो मैं वोल्टेज बढ़ाती तो सारा कुछ रिवर्स हो जाना। मीनस एनोड ने कैथोड च कन्वर्ट हो जाना, कैथोड ने एनोड च कन्वर्ट होना। मतलब आफ्टर क्या होगा, मतलब आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज जिंक क्या बन जाऊगा, कैथोड। कॉपर क्या बन जाऊगा, एनोड। इलैक्ट्रॉन किधर मूव करनगे, कॉपर टू जिंक, इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। एंड करंट किधर जाएगा जी, जिंक टू कॉपर। सारी प्रोसैस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। एक और ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल च क्या होंदा है, जिंक रॉड का वेट डिक्रीज होगा, जिंक रॉड वेट डिक्रीज एंड कॉपर इंक्रीज। अगर भी पोटेंशियल ज़्यादा लाता फिर तो उल्टा कर दो। आफ्टर क्या होगा, जिंक रॉड वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ते कॉपर डिक्रीजिंग। देखो ये प्रोसैस जी मैं तुम दस रहा कि ज़्यादा लगाता एक्चुअल चार्जिंग च कम आती है। जिवें सपोज करो मेरे को मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल 100% दिखा रहा, मतलब फुली चार्ज, तो उस समय क्या होगा, आप समझ सकते, के अंदर जो सैल बनया हुआ जो बैटरी है, जिंक रॉड का वेट मैक्सीमम होएगा, कॉपर का क्या होएगा, आप कह सकते हैं कि मिनीमम होएगा। सैल स्टार्ट है, मतलब सैल थोड़ा वर्क करने तैयार है। तो जिदा ही सारा कुछ होंदा जाऊगा, जिंक का रॉड क्या करता, जिंक रॉड का वेट क्या करता जाऊगा, रिड्यूस। कॉपर रॉड का इनक्रीज करता जाऊगा। जिन्ना ही घटता जाऊगा उस हिसाब नाल बैटरी की परसेंटेज भी घटते, मतलब 60% रह गई। अगर बैटरी मेरी 60% रह गई मोबाइल की, तो मतलब जिंक रॉड 40% खत्म हो चुकी है। वैसे बेसिकली मोबाइल के लीथियम आयन बैटरी होंगी, बट आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं सिंपल, कि उत्थे भी इदा ही होंगे। अगर सपोज करो मेरी बैटरी 0% होगी, मीन जिंक रॉड बिल्कुल खत्म हो गई, कॉपर रॉड का वेट किया बिल्कुल मैक्सीमम हो गया, फिर मैं चार्ज से लगा देना। चार्ज ना क्या होगा, सारा प्रोसेस उल्टा हो जाना है। कॉपर रॉड का वेट की करना है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देना है। उस हिसाब से जिंक रॉड का क्या करूँगा, इनक्रीज। होपफुली क्लीयर होगा। चलो 100% कदों दिखाऊगा फिर मैं चार्जिंग, जो जिंक रॉड का वेट क्या होगा, बिल्कुल मैक्सीमम। बाकी आप अगले लेक्चर च करांगे। सॉल्ट ब्रेक का एक और फंक्शन भी है, टू मेनटेन द जंक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट चैप्टर आप नेक्स्ट देखांगे, जो होर पॉइंट रह गए इलैक्ट्रोकेमिकल सैल के, दैट इज सीन इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।